The topic is human circulatory system. In this, write down first point. In human being, circulatory system, consists of heart, blood vessels, blood एंड लिम्फ। ये चार चीजें हमको इस टॉपिक में पढ़नी है। हार्ट, ब्लड वेसल्स, ब्लड एंड लिम्फ। राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट। ब्लड एंड लिम्फ आर द टू circulatory fluid of human body. Blood and lymph are the two circulatory fluid of human body. Now write down heading structure of human heart. Structure of human heart. देखो, जब हम बात करते हैं ह्यूमन हार्ट की, this is the structure of human heart. Human heart is covered by a protective layer that is called pericardium. किस लेयर से कवर्ड होता है? The first point. The second point, human heart is located in between two lungs. That space where human heart is located is known as mediastinum. क्या कहलाता है? mediastinum. ह्यूमन हार्ट का जो शेप होता है that is similar to clenched fist. जो हमारे हाथ की बंद मुट्ठी होती है उसके शेप का शेप होता है ह्यूमन हार्ट का। तो फर्स्ट थिंग, ह्यूमन हार्ट इज कवर्ड बाय अ प्रोटेक्टिव लेयर दैट इज कॉल्ड pericardium. That pericardium contain a fluid that is known as pericardial fluid, or it performs same function as pleural fluid perform in case of lungs. Heart is located in between two lungs. In that space is known as mediastinum. The shape of human heart is like clenched या closed fist. The average weight of human heart is around 300 gram. कितना होता है? 300 gram. Internally, when we talk about human heart consists of
4 chambers. One is called right auricle, one is called right ventricle, one is called left auricle, one is called left ventricle. तो right auricle, right ventricle, left auricle, left ventricle. क्लियर? अब देखो, राइट ऑरिकल में आकर जो ब्लड वेसल्स ओपन होती हैं, उन ब्लड वेसल्स के नेम हैं, हमारे लोअर बॉडी से जो ब्लड वेसल आकर यहाँ पर ओपन होती है राइट ऑरिकल में, ये वाली ब्लड वेसल, ये ब्लड वेसल कहलाती है इंफीरियर वेना कावा. क्या कहलाती है? हमारे लोअर बॉडी से हार्ट के नीचे जितने भी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, वहां की सारी वेन्स मिलकर एक लार्जेस्ट वेन बनाते हैं हमारे बॉडी की. दैट इज कॉल्ड इंफीरियर वेना कावा. दैट वेन कैरी ब्लड टुवर्ड्स राइट ऑरिकल. हमारे बॉडी के ऊपर वाले पोर्शन से जो ब्लड कलेक्ट होकर आता है, दैट वेन इज कॉल्ड सुपीरियर वेना कावा. इंफीरियर वेना केवा की लेंथ सुपीरियर वेना केवा के कंपैरिजन में ज्यादा होती है. क्लियर? द लेंथ ऑफ इंफीरियर वेना केवा इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लार्जेस्ट वेन ऑफ ह्यूमन बॉडी. क्लियर? अब पूरी बॉडी से जो ब्लड कलेक्ट होता है वो कहां एंटर करता है? दैट मीन्स पूरी बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, दैट एंटर इनटू राइट ऑरिकल. दैट एंटर इनटू राइट ऑरिकल से ब्लड मूव करता है टुवर्ड्स राइट वेंट्रिकल. राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में छोटे छोटे मसल्स के बने हुए 3 फ्लैप्स होते हैं. इन 3 फ्लैप्स को हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वेल्व. क्या नाम देते हैं? These tricuspid valve only allow the flow of blood from auricle into ventricle. They prevent back flow of blood from ventricle to the auricle. यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं वेंट्रिकल के वॉल की, ये वेंट्रिकल की वॉल, these valve are attached to wall of ventricle by the help of some structures which support these valves. These structures are called chorda tendineae. These structures support the opening and closing of valve. Yeah, these structures hold the valve in their proper position. Chorda tendineae. राइट वेंट्रिकल में जैसे ही ब्लड आता है, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है, उल्लू हो तुम लोग तो. राइट ऑरिकल से ब्लड आया राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है पल्मोनरी आर्टरी में. कहां जाता है? कहां जाता है? पल्मोनरी आर्टरी. Right ventricle open into pulmonary artery. The opening of right ventricle in pulmonary artery is controlled by a valve. तुम अभी भी उल्लू ही हो. This valve is called pulmonary valve. This valve is called pulmonary valve. Clear ये point?
Now the blood is going into which artery? Pulmonary artery carry blood towards the lungs. In lungs, this blood comes in a contact of alveoli where gaseous exchange take place. Deoxygenated blood become oxygenated. That oxygenated blood return. This oxygenated blood return to left auricle by the help of pulmonary veins. By the help of pulmonary veins. This left auricle open into this left auricle open into left ventricle by the help of bicuspid valve. By the help of bicuspid valve. This bicuspid valve is also known as mitral valve. क्या कहलाता है? Mitral valve. Now blood from left auricle is entering into left ventricle. Clear? Left ventricle contain thickest wall among all the components of heart. इन चारों चैम्बर्स में से सबसे ज्यादा थिकेस्ट वॉल किसकी होती है? लेफ्ट वेंट्रिकल. यहां पर भी प्रेजेंट होंगे कॉर्डा टेंडनी. क्या प्रेजेंट होंगे? फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड एंटर इनटू दिस blood vessel. This blood vessel is called systemic aorta. Systemic aorta. The opening of left ventricle in systemic aorta is also guided by two valves. The opening of left ventricle in systemic aorta is also controlled by valve. This valve is called aortic valve. What it called? Aortic valve. This systemic aorta send the blood throughout the body. This systemic aorta is the largest artery of human body. It have some branches which are moving towards the superior part of body. It also contain some branches which move towards the inferior part of the body. So this is completely about the human heart. Right on first point, human heart is located in between. Human heart is located in between two lungs. Human heart is located in between two lungs in a space known as mediastinum. In a space known as mediastinum. Write down next point. The shape of human heart. The shape of human heart. The shape of human heart is like clenched fist. The shape of human heart is like clenched fist. हाँ. And its average weight is around 300 gram.
Its average weight is around 300 ग्राम। सोचो डायनासोर्स के हार्ट का वेट कितना होता होगा। कोई नहीं, तुम लिख लो, लिखो नेक्स्ट पॉइंट। ह्यूमन हार्ट इज कवर्ड बाय, अच्छा क्या क्या सोचते हो डायनासोर्स के हार्ट में कितने चैम्बर होते होंगे? डायनासोर के हार्ट में कितने चैम्बर्स होते होंगे? 8 चलो लिखो लिखो लिखो। अरे रुक तो जाओ, लिखो। क्या लिखा? ह्यूमन हार्ट इज कवर्ड बाय अ प्रोटेक्टिव लेयर। ह्यूमन हार्ट इज कवर्ड बाय अ प्रोटेक्टिव लेयर called pericardium, called pericardium, which contain pericardial fluid, which contain pericardial fluid, which contain pericardial fluid and provide protection to it, and provide protection to it. Write down next point. Internally human heart consists of 4 chambers. Internally human heart consists of 4 chambers. First लिखो right auricle, second right ventricle, third left auricle, and fourth left ventricle. याद रखना राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल में से साइज बड़ा होता है चैम्बर का राइट ऑरिकल का, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में से साइज बड़ा होता है वेंट्रिकल का। लिखो नेक्स्ट पॉइंट। among all these 4 chambers, among all these 4 chambers, among all these 4 chambers, left ventricle contain thickest wall. Left ventricle contain thickest wall. क्यों होता है ऐसा? हाँ लिख लो, because it has to supply the blood throughout the body. Because it has to supply the blood throughout the body. It has to supply the blood throughout the body. Write down next point. Between right auricle and right ventricle, between right auricle and right ventricle, tricuspid valve is present. Between right auricle and right ventricle, tricuspid valve is present. बच्चों कस्पिड का मतलब क्या होता है? ये वर्ड कहां से आया? कस्पिड। कौन बोला ये? हम हर वर्ड लैटिन लैंग्वेज ही क्यों यूज करते हैं? कोई भी क्वेश्चन। हाँ खड़े हो दीप, तुमने बोला लैटिन लैंग्वेज से आया होगा। हम हर वर्ड लैटिन लैंग्वेज की बात क्यों करते हैं? तो ओल्ड से ओल्ड तो संस्कृत है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? संस्कृत में क्या बोलेंगे इसको?
देखो जब हम बात करते हैं टीथ की, मोलर्स देखे? ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये कहलाते हैं कस्प। क्या कहलाते हैं? जैसे मोलर में 4 कस्प होते हैं या 5 भी हो सकते हैं, प्री मोलर्स में 2 कस्प होते हैं, तो ये वर्ड वहीं से लिया गया है, ट्राइकस्पिड एंड बायकस्पिड। कस्पिड वर्ड हम यूज करते हैं प्री मोलर्स एंड मोलर्स के केस में, याद रखना ये पॉइंट। क्लियर? तो बिटवीन राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल tricuspid valve is present, while between left auricle and left ventricle, between left auricle and left ventricle, bicuspid in bracket write down, mitral valve is present. Mitral valve is present. Bicuspid in bracket write down, mitral valve is present. Write down next point. Right ventricle open into pulmonary artery. Right ventricle open into pulmonary artery, while right ventricle open into pulmonary artery, while left ventricle open into systemic aorta. Left ventricle open into systemic aorta. Systemic aorta is also called systemic artery. क्या कहलाती है? systemic artery. लिखो नेक्स्ट पॉइंट। The opening of both ventricles, the opening of both ventricles in their respective arteries, the opening of both ventricles in their respective arteries is controlled by semilunar valve. The opening of both ventricles in their arteries is controlled by semilunar valve. सुनना बच्चों, राइट वेंट्रिकल ओपन होता है पल्मोनरी आर्टरी में, उस वेल्व को हम क्या कहते हैं? और लेफ्ट वेंट्रिकल ओपन होता है सिस्टमिक एओर्टा में, उसको भी हम क्या कहते हैं? सेमीलूनार वेल्व जो राइट वेंट्रिकल से ओपन हो रहा है पल्मोनरी आर्टरी में, उसको हम पल्मोनरी वेल्व भी कहते हैं। मतलब सेमीलूनार वेल्व का दूसरा नाम क्या है? जब वो कहां ओपन हो रहा है? पल्मोनरी आर्टरी में। और लेफ्ट वेंट्रिकल ओपन हो रहा है सिस्टमिक आर्टरी में, तो उस सेमीलूनार वेल्व को क्या कहते हैं हम? एक्चुअली जो ये वेल्व है उनका शेप होता है हाफ मून शेप। मून के केस में हम वर्ड यूज करते हैं लूनार, पढ़ा है ना हमने, लूनार इक्लिप्स, यस और नो? तो वहां पर हम वर्ड यूज करते हैं सेमीलूनार, हाफ मून शेप। और वो उसकी लोकेशन के बिहाफ पर सेमीलूनार वेल्व को यहां पर हम क्या बोलते हैं और यहां पर क्या नाम देते हैं? लिख लो ब्रैकेट में, बोथ पल्मोनरी वेल्व एंड एओर्टिक वेल्व। सेमीलूनार वेल्व के ब्रैकेट में लिख लो बोथ पल्मोनरी वेल्व एंड एओर्टिक वेल्व, बोथ पल्मोनरी वेल्व एंड एओर्टिक वेल्व। क्लियर? अब इसको कंप्लीट कर लो, जो भी हेडिंग छूटी हुई हैं, या एक पॉइंट और भी लिखो बच्चों, ये छूट गया है पॉइंट, लिखो इसमें द पोजीशन ऑफ बोथ tricuspid and bicuspid valve, the position of both tricuspid and bicuspid valve is controlled by
is controlled by chorda tendineae, is controlled by chorda tendineae, and the main function of valve and the main function of valve is to prevent, the main function of valve is to prevent backflow of blood. The main function of valve is to prevent backflow of blood. कॉपी के टॉप पर लिखो, ऊपर लिखो इसमें फिशेस, फिशेस एरो लगा के लिखना, टू चैम्बर्ड हार्ट। फिशेस में होता है कितने चैम्बर होते हैं? टू चैम्बर्ड हार्ट। नेक्स्ट लिखो एम्फीबिया। हमें एम्फीबिया लिखना नहीं आता। कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं एम्फीबिया में? एम्फीबिया में एग्जाम्पल क्या है एम्फीबिया का? फ्रॉग। क्या? फ्रॉग, एम्फीबियंस, जो दोनों जगह रहते हैं, वाटर में भी और लैंड पर भी। एम्फीबिया लिखो थ्री चैम्बर्ड हार्ट, थ्री चैम्बर्ड हार्ट। नेक्स्ट लिखो रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स में लिखो थ्री चैम्बर्ड हार्ट। वैसे रेप्टाइल्स में 3.5 चैम्बर्ड होता है, बट अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी इट्स 3 चैम्बर्ड। ठीक है, तो डायनासोर में कौन सा होगा? 3 चैम्बर्ड। कौन सा होगा? सिर्फ एक रेप्टाइल छोड़ दो, उसमें 4 चैम्बर्ड होता है, और दैट इज क्रोकोडाइल। कौन सा? क्रोकोडाइल के कई सारे फीचर्स ह्यूमन बीइंग से मैच करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ, बट करते हैं। ठीक है, लिख लो क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल कॉमा बर्ड्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, क्रोकोडाइल कॉमा बर्ड्स एंड मैमल्स। सामने लिखना 4 चैम्बर्ड हार्ट, 4 चैम्बर्ड हार्ट। उत्कर्ष, उत्कर्ष खड़े हो। डॉल्फिन में कितने चैम्बर्ड हार्ट होना चाहिए? हाँ, डॉल्फिन में 2 चैम्बर्ड। कितने चैम्बर्ड? हाँ सोनी जी खड़े हो। अरे बैठना थोड़ी ना बेटा। हाँ लो, ये कह रही 4 चैम्बर्ड। हाँ वही तो, गधे, नालायक। डॉल्फिन इज अ मैमल। क्या? अच्छा, ब्लू व्हेल में क्या होगा? 4। क्यों, किस खुशी में? 2 चैम्बर्ड। कितना होता है? 4 ही होता है। कितना होता है? ब्लू व्हेल भी मैमल है। मैंने इसलिए दोनों एग्जाम्पल पूछे क्योंकि हमें यही नहीं पता कि डॉल्फिन और ब्लू व्हेल मैमल होता है कि फिश होता है। पेंगुइन बर्ड होती है। क्या होती है? बर्ड। कितने चैम्बर्ड होगा? 4। ब्लू व्हेल एंड डॉल्फिन आर मैमल्स। क्या होते हैं? मैमल। क्या होते हैं? तो कितने चैम्बर्ड होगा? 4। याद रखना है, फिश नहीं।